Hello, Taurus people. This is a reading that I'm doing for you. First of all, welcome to my reading. This is a reading about your soul purpose. This is a reading about your soul purpose because at times it does happen that we become directionless in our life. कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे, किस तरफ जाए, राइट ले, लेफ्ट ले, मिडिल रोड ले, मिडिल ग्राउंड ले, क्या ले, कैसे बैलेंस मेंटेन करे खुद की लाइफ में, कौन सा चीज़ चुने, कौन सा चीज़ करे, किस चीज़ को अपनाए, किस चीज़ को पराए. तो this is your guidance. It will be followed by various several spiritual guidance because I am using a lot of multiple decks out here. So the cards are already shuffled. It's kept out here and I'll show you the cards eventually one by one. So this is the purpose of the reading so that you tend to know your soul purpose. Why have you come in this lifetime? For what reason? आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? ऐसे ही हम लोग नहीं चले आते हैं, my dear. If you don't know the spirituality laws or the law of spirituality, please do find it, Google it out, and increase your knowledge, about this soul laws or spiritual laws. हम लोग कुछ मकसद लेके आते हैं इस दुनिया में सबका अलग अलग मकसद रहता है. सो इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल Taurus under the sun. So certainly some stories, some facts will resonate, some facts will not resonate. So please take it as it resonates with you, Taurus people. Please do not forcibly fit a different story into your life, okay? So please take it as it resonates with you. And it will be followed by the spiritual guidance. These are all spiritual guidance cards, as you can see. The soul cards, these are the soul cards, soul purpose cards. It will define your past, present, and future, everything. So fine, let's start with your reading. Welcome to my reading once again, Taurus people. Rest all the cards are shuffled. I'll pick up 3 cards from this deck. So please know your soul purpose. Why have you come in this lifetime? What is your purpose? आप किस लिए आए हैं? क्या वजह है इस दुनिया में आने का? ऐसे ही तो कोई चला नहीं आता है मस्ती करने के लिए, isn't it? कुछ मकसद रहता है तभी हम लोग आते हैं. कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लर्न करने के लिए आते हैं, कुछ अनलर्न करने के लिए भी आते हैं. सो अपना सोल पर्पस जानिए और उस हिसाब से अपना जीवन बिताइए. It will be easy for you then if you're aligned with the universe, if you're aligned with your soul energies. Because अगर आप align नहीं होते हैं उस energies के साथ तो चक्रा डिसबैलेंस होता है एनर्जेटिकली, माइंड डिसबैलेंस होता है एनर्जेटिकली, पूरा लाइफ डिसबैलेंस हो जाता है एनर्जेटिकली. Okay. Well, Taurus people, to start with your reading, a factor of grief, doubt, and blame has come out. Okay, with these 3 cards. These are all soul purpose cards. A factor, 3 factors consisting of grief, doubt, and blame has come out, which can sum up to that maybe you're in grief. Maybe you're in grief because someone else is doubting you. Someone else is doubting your deeds, your thoughts, your actions, and blaming you for that. And that is what is making you sad. You're having grievances in life, Taurus people. You have to understand that losing something is an opportunity to appreciate it.
It could be that grief could be because of, maybe you have to let go of something. This could also be the reason for some Taurians, because it will vary from Taurian to Taurian, certainly, since it's a general reading. So I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Maybe because of this, you're having the sadness in your life, Taurus people. But you have to let go of that thing, my dear Taurus. तभी आपको खुशी मिल सकती है. हो सकता है ऐसा कुछ चीज़ है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कोई इंसान है जिसको आपको लेट गो करना पड़े. कोई काम है ऐसा, लेट गो करेंगे तभी खुशी मिलेगी. डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स. मे बी आपको कोई डाउट कर रहा है या फिर आप किसी को डाउट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा. आपको कोई डाउट कर रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है, या फिर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, आप किसी को डाउट कर रहे हैं, इससे आपको तकलीफ़ पहुंच रही है. ऐसा भी हो सकता है. तो इस डाउट को, इस ब्लेम गेम को प्लीज़ अपने लाइफ से हटाइए. लेट गो कीजिए ये सब सिचुएशंस को, ये सब फैक्टर्स को अपने लाइफ से. तभी आप खुश रह पाएंगे, नहीं तो आप खुश नहीं रह पाएंगे. दिस कार्ड इज सेइंग लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी. आप अगर इस सब चीज़ों को लेट गो कर पाएंगे तभी आप राइट ट्रैक पे आएंगे. यही आपका सोल लेसन है कि कैसे ब्लेम गेम को हटाए. आपको अगर कोई ब्लेम कर रहा है तभी लेट गो कीजिए उस इंसान को, उस सिचुएशन को. आप अगर किसी को ब्लेम कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तभी भी लेट गो कीजिए. नहीं तो लेट गो नहीं करेंगे तो ग्रीफ आपके जीवन भर आपका साथ देगा. फिर इस टाइप का साथ आप वाकई में शायद नहीं चाहते हैं. हम लोग कोई नहीं चाहते कि सैडनेस हमारा साथ दे, हमारे पीछे पड़ा रहे. सर्टनली वी डू नॉट वॉन्ट. वी वॉन्ट हैप्पीनेस. वी वॉन्ट टू बी ऑन द राइट ट्रैक. सो फॉर बीइंग ऑन द राइट ट्रैक you have to let go of your doubt. I release the need to know all the answers. Blame. I accept responsibility for my well-being. दूसरे को ब्लेम करने के बजाय खुद की तरफ झांकिए, खुद की तरफ झांक के देखिए कि कहीं गलती आपसे भी तो कुछ हुआ है कि नहीं. क्वेश्चन कीजिए अपने आप को. तभी आप राइट ट्रैक पे आ पाएंगे. लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी तभी आपके साथ शामिल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में. आपका सोल का यही कहना है. सो नो योर सोल पर्पस थ्रू दीज रीडिंग्स. नाउ service. Well, the bottom of the deck card is also of importance. It says service because it deep down it describes your subconscious mind. It says service. I feel good when I can help others. So instead of blaming others, my dear Taurus, try to help others. दूसरे को हेल्प कीजिए. इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी. आप यूनिवर्स के साथ, आपका एनर्जीज अलाइंड रहेगा. आप पीसफुल रहेंगे, इन सिंक रहेंगे. दैट इज़ व्हाट आई सेड. आपका एनर्जीज, यूनिवर्स का एनर्जीज इन सिंक रहेगा. प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है? जब हमारा एनर्जीज एक तरफ होता है या एक टाइप का होता है. यूनिवर्सल एनर्जीज जो है वो और एक टाइप का मिसमैच होता है. यूनिवर्स का एनर्जीज जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन आपका एनर्जीज अगर यूनिवर्सल एनर्जीज से मैच नहीं करेगा तो सारा का सारा चक्रास डिसबैलेंस हो जाएगा. आपका होल लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगा. सो अलाइन कीजिए अपने एनर्जीज को, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन कीजिए. तभी आप राइट ट्रैक में आ सकते हैं. ओनली देन यू कैन कम टू द राइट ट्रैक. My dear Taurus people, this is what is universe is asking you and guiding you to do. Your soul wants to learn that kind of a lesson and serve other people. You will certainly feel good when you help others. Now I'll be moving on to all the
rest of the spiritual guidance card serially one by one. Well, the first card says Divine Flow. This is the card. It says Divine Flow. अभी मैंने कहा यूनिवर्सल एनर्जीज देखिए, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइंड होइए. इसी का मतलब डिवाइन फ्लो है. आप अलाइंड रहेंगे तो ही खुशी मिलेगी. सही ट्रैक पे रहेंगे आप खुद, आपकी ज़िंदगी भी. आपका सही ट्रैक पे रहना मतलब ही आपका ज़िंदगी सही ट्रैक पे रहना. So divine flow, it describes further, eventually one sublime desire takes precedence over all others, to follow the Tao, the divine flow at all costs. तो उस divine flow को, in the sense उस divine energies को, universal energies को follow कीजिए. Follow that. इन द सेंस सिंक्रोनिसिटी, आपका एनर्जी और यूनिवर्स का एनर्जी मैच करवाइए. कनेक्टेड रहिए खुद से, मेडिटेट कीजिए, तभी आप डिवाइन से, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, तभी आप डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं. ईगोइस्टिक सेल्फ में रहेंगे तो कभी भी डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपके सोल से भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो ये है. Okay, the next card is saying relax. I receive all blessings. These are all self-affirmation cards also, positive affirmation cards also. So please listen to it carefully, pay heed to these messages, because these all are guidance messages which will certainly help you in your life to move ahead peacefully and rightfully, Oh beloved, change me into one who knows how to relax completely, sleep deeply, and receive all the blessings of every moment exactly as it presents itself with ease and gratitude. हो सकता है इस दुख की वजह से, इस डाउटफुल नेचर की वजह से, इस ब्लेम गेम की वजह से जो आपके साथ हो रहा है, आप रात को सो भी नहीं पा रहे, दुश्चिंता आपको खा जा रही है, तो रिलैक्स कीजिए. यूनिवर्स का यही कहना है, यही समझाना है आपको, आपके सोल को, कि रिलैक्स, स्लीप डीपली, तभी आप शांति से सो पाएंगे. अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें. ब्लेम गेम हटाइए, लेट गो कीजिए, डाउट लेट गो कीजिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, इट सेज फीलिंग्स. इमोशंस वांट टू बी फेल्ट. You really can't surrender something until you deeply feel it. So, ये जो फीलिंग्स आपके मन में चल रहा है, ग्रीफ का, डाउट का, ब्लेम का, इन सब चीज़ों को डीपली फील करके तभी आप डीपली इसे लेट गो कीजिए. तभी आप लेट गो कर पाएंगे. इफ़ यू फील इट डीपली, यू हैव टू सरेंडर. अदरवाइज़ यहाँ पे भी देखिए लेट गो की बात की है, सरेंडर की बात की गई है. तभी आप सरेंडर कर सकते हैं. अदरवाइज until you feel deeply about something you cannot surrender, क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पे ये सब नहीं होता है. डीपली सरेंडर करना पड़ता है, डीपली फील करना पड़ता है सरेंडर करने के लिए. अलाउ मी डियर डिवाइन टू ऑफर ऑल द इमोशंस टू यू, फीलिंग देम फुल्ली so they no longer hold me captive. आप कैप्टिवेटेड फील कर रहे हैं. ये सब जो नेगेटिव फीलिंग्स है, सैड फीलिंग्स है आपके अंदर, टॉरस पीपल, ये ग्रीफ है, डाउट है, ब्लेम है, ये सब के लिए आप खुश नहीं हो पा रहे हैं अंदर से, बहुत कैप्टिवेटेड फील कर रहे हैं, एज इफ़ यू आर फीलिंग जेल्ड. किसी ने आपको बंध के रखा है, बांध के रखा है, एज इफ कैदी जैसा एक फीलिंग आ रहा है आपके मन में, आपके फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में, आपके जीवन में. सो प्लीज़ लेट गो. दिस इज़ द मैसेज यूनिवर्स वांट्स टू कन्वे यू टू योर सोल. योर सोल वांट्स टू कन्वे यू. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न. बी एनलाइटेंड, अडेप्टेबल, सोलफुल एंड कनेक्टेड. जैसा मैंने कहा, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, हायर पावर से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपना एनर्जीज़
मैच करवाइए यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ। उसके लिए मेडिटेट कीजिए, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, तभी आप डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप एनलाइटेंड हो पाएंगे। एडेप्टेबल होइए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट टू द चेंजेस। शायद आप बहुत स्केप्टिकल हो रहे हैं, इसीलिए ये डाउट, ब्लेम, ये सब आ रहा है आपके लाइफ में, इस तरह के एनर्जीज आ रहे हैं। सो नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू नीड टू डू। प्लीज़ डू द नीडफुल चेंजेस, टॉरस पीपल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसा लगा, ये सोल पर्पस का रीडिंग कैसा रेजोनेट कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, आपके एनर्जीज़ कैसा रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग के साथ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड सर्टेनली अप्रिशिएट योर फीडबैक, इट विल हेल्प मी ऑल्सो। So please do let me know. See you in my next reading. Till then, Taurus people, take care. Goodbye.